ایک ہے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا، وہ بھی بڑا ضروری ہے، اور ایک ہے بندے کا راضی ہونا، وہ بھی بڑا ہی ضروری ہے۔ ہماری زندگی کو کھا گئی یہ چیز کہ میں غریب ہوں تو امیر کیوں نہیں ہوں، میں بیمار ہوں تو تندرست کیوں نہیں ہوں، میری شہرت کم ہے تو زیادہ کیوں نہیں ہے، اس کاش کو، کیوں کو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میری زبان پہ انگارہ آ جائے اور جل جائے، وہ اس سے بہتر ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ کام ایسے کیوں ہوا ہے یا ایسے کیوں نہیں ہوا۔ میرے رب نے جو کیا ہے، جس وقت کیا ہے، جس کرم سے کیا ہے، اس نے بہتر ہی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا، اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا، مقام تسلیم و رضا پہ رہنا۔ قرآن مجید میں نا اہل ایمان کی جو علامت بیان کی ہے، اور جگہ جگہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ بڑا قابل غور ہے۔ وہ لفظ یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، وہ بھی اپنے رب سے بڑے راضی ہیں۔ مقام تسلیم و رضا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ، یہ سورۃ المائدہ ہے۔ تو رب کیا فرماتا ہے؟ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ بندہ اللہ سے راضی ہو اور اللہ اپنے بندے سے راضی ہو، تو ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی۔ یہ دیکھیے، یہ آیہ کریمہ ہے قرآن مجید کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 ہے۔ یہ نا بہت بڑا فلسفہ ہے رب کی رضا پہ راضی رہنے کا۔ یہ آیہ کریمہ میں سمجھتا ہوں اگر کسی بندے کو پوری طرح یہ سمجھ آ جائے نا، تو پھر عقیدہ توحید بھی پکا ہو جائے گا، اس کا نظریہ اپنے رب کی رضا پہ مستحکم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، ذرا انداز دیکھیے رب کریم کا اپنے بندوں پر کرم کرنے کا اور سمجھانے کا۔ فرمایا کتبہ علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر نہ جہاد فرض کیا گیا ہے اگرچہ وہ تمہیں ناگوار ہی ہو، چاہے تمہیں اچھا نہ لگے۔ کتبہ علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرمایا تم پر جہاد ضروری قرار دیا گیا ہے، لڑنا اللہ کی راہ میں تم پر ضروری ہے، فرض ہے، اگرچہ وہ تمہیں ناگوار ہو۔ اور پھر آگے پتہ کیا فرمایا؟ حد کرتے، بڑی بڑی دنیا میں لوگ معرفت ڈھونڈ کے لائیں گے پر دم توڑ جائے گے۔ کیا سمجھایا ہے اور کیا معرفت دی ہے اپنے بندے کو؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، فرمایا قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ اور جب آپ وقت دیتے ہیں تو بہت سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر بڑا شروع میں کلمہ پڑھا، ان لوگوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں جنہوں نے آغاز اسلام میں کلمہ پڑھا، حالات اور طرح۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑی تکلیف دیتے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں وہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، حضرت سمیہ ان کا نام تھا، اسلام کی پہلی شہیدہ۔ ان کے زیر ناف ابو جہل نے نیزہ مار کے انہیں شہید کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کو اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ وہ ان اذیتوں کی وجہ سے دنیا سے پردہ کر گئے۔ حضرت عمار بن یاسر کو خود کافر اتنا مارتے تھے کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے تھے اور ایسی باتیں کرتے تھے کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ عمار بن یاسر بول رہے ہیں۔ اتنی سخت اذیت دیتے، اتنی سخت۔ دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے، دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن۔ اتنی تکلیف دیتے کہ حضرت عمار بن یاسر حواس کھو بیٹھتے، تکلیف میں آتے، بڑا سہا، بڑا برداشت کیا۔ ایک دن میرے رسول پاک تشریف لائے اور حضور نے کہا او آل یاسر میں تمہیں مبارک دینے آیا، رب کریم نے تمہارے لیے جنت میں مکان بنا دیے، حضور نے تمہارے لیے، اللہ نے تمہارے لیے جنت میں مکانات، تمہیں مبارک، تمہاری اذیتیں، تمہاری تکلیفیں، تمہارے درد، تمہاری راتیں کام آ گئیں، مالک نے تمہارے لیے مکانات بنا دیے ہیں، حالات ٹھیک کر دیے ہیں، طبیعتوں میں بہتری آ گئی ہے۔ میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم سید عالم نور مجسم شفیع
मुअज़्ज़म आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें खुशखबरी सुना दी। हज़रत अम्मार कहते हैं फिर हालात बदले, फिर मैंने जो मुझे अज़ियतें देने वाले थे मैंने उन्हें गढ़ों में गिरते देखा। आप फरमाते हैं अबू जहल की लाश उठाने वाला भी बदर में कोई मौजूद न था, और अबू लहब जो मुझे तकलीफ़ें देता था वो मक्के के चौक में मरा हुआ पड़ा था, पर कोई उसके करीब जाने वाला भी मौजूद न था, कोई नहीं था। आप फरमाते हैं वो हालात भी। हज़रत अम्मार का अपना क्या हाल हुआ? हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े बहादुर हैं। हुज़ूर ने फरमाया ये अल्लाह की तलवार है, ये अल्लाह की, बड़े बहादुर थे, बड़े शेर दिल थे। फरमाते हैं कभी माजरत नहीं करनी पड़ी, कभी झुकना नहीं पड़ा, कभी किसी की मिन्नत नहीं की। अल्लाह ने ताकत इतनी अता फरमाई थी, हिम्मत, हौसला, सब्र, इस्तकामत इतना दिया, कभी किसी जगह पुश्त नहीं लगी। लेकिन फरमाते किसी वजह से ना एक दिन मेरा अम्मार बिन यासर के साथ किसी बात पे इख्तलाफ राय हो गया। जनाब अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अम्मार बिन यासर कहते हैं हज़रत खालिद बिन वलीद के साथ, जनाब खालिद बिन वलीद कहते हैं मेरी उनके साथ ना किसी बात में इख्तलाफ राय हो गया। तो मैं अब दलेर आदमी था, शेर आदमी था, कभी झुका नहीं था, कभी कोई मामला नहीं हुआ था, कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। आप फरमाते हैं जब राय का इख्तलाफ हो गया ना, बात जरा आगे बढ़ गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुंची। तो मेरा ये ख्याल था कि हुजूर मेरी भी सुनेंगे, अम्मार बिन यासर की भी सुनेंगे, फिर हुजूर कोई फैसला करेंगे, पर कुर्बान जाऊं। वक्त बदल गया है ना, अब बहुत बड़े चौधरी हैं, बड़े सरदार हैं, बड़े सुबह सालार हैं हज़रत खालिद बिन वलीद, पर वक्त बदल गया। हज़रत खालिद बिन वलीद कहते हैं जब मैंने नबी करीम की बारगाह में बात दर्ज की, हुजूर तक बात पहुंची, तो मेरे मुस्तफ़ा ने मोटी सी बात इरशाद फरमाई। रसूल करीम फरमाने लगे भाई बात मुख्तसर सी है, जिसने अम्मार को राजी कर लिया उसने मुझे राजी कर लिया, और जिसने इसे नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। फरमाते हैं बस मेरी कीमत बढ़ गई, मेरा कद ऊंचा हो गया। हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं मैंने भी कहा अब बात क्या करनी है, अब तो गुजारिश ही करनी है, अब मुद्दा क्या सुनाना है, अब तो बात करनी है। फरमाते मैं आगे बढ़ा और जैसे भी हुआ मैंने हजरत अम्मार बिन यासर को राजी किया। हजरत अम्मार कहते हैं एक वक्त वो था और एक वक्त ये है, जब दोनों वक्तों को देखता हूँ तो कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये सारी तारीफें उस रब के लिए हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला। वक्त दे मामलात को, टाइम दे। आप देखें अल्लाह तबारक व तआला बड़ा करीम है, वक्त के साथ जब चीज़ें तब्दील होती हैं अपने टाइम की। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला, बड़ा मुश्किल नहीं, अकेला आदमी, गरीब आदमी, मक्के के सारे सरदारों के काबू आ गए। हजरत हसन कहते हैं मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, हजरत बिलाल के गले में रस्सी डाल के बच्चे खींचा करते थे। यार खासा मुश्किल काम नहीं। उमैया बिन खलफ डंडों से मारता है, आपके हाथ और पैर चारपाई के नीचे रख के तो ऊपर बैठे रहते बड़ी बड़ी देर, बड़ी तकलीफ नहीं, बड़ी अजियत नहीं। लेकिन हजरत बिलाल हबशी फरमाते हैं फिर मैंने वो सारे दुख मिटते देखे। वक्त बीत गया, वही उमैया बिन खलफ एक दिन घोड़े पे था, घोड़े अपने को तैयार कर रहा था, लगाम डाल रहा था। हुजूर अलैहिस्सलाम गुजरे तो फरमाया क्या कर रहे हो? कहने लगे इस घोड़े पर बैठ के आपको शहीद करूंगा। तो हुजूर फरमाने लगे तैयारी कर ले, तुझे कत्ल मैं नहीं करना। फिर जंग के मौके पे ना हल्की सी खराश लगाई रसूल पाक ने उसने, या गले पे, तड़पता था, रोता था, सिसकता था। लोग कहते थे उमैया क्या हो गया, इतना सियाना बंदा ये क्या करता है? तो कहने लगा तुम्हें पता नहीं मुझे तकलीफ कितनी, सरब तो छोटी है पर तुम्हें पता नहीं लगाई किसने, है तो छोटी पर तुम्हें खबर नहीं कि लगाई किसने है, किसने ये ज़रब लगा दी है। फिर तड़प कर सिसक कर मरा। हालात बदल जाते हैं, हालात में तब्दीलियां आ जाती हैं। हम वक्त नहीं देना चाहते। हमारे अंदर जो हौसले की कमज़ोरी होती है, हमारे अंदर जो वो एक बहुत बड़ा मामला होता है कि किसी भी तरीके से ये मामला ख़त्म हो, किसी भी तरीके से शिफा हो, जल्द अज जल्द हम इस बात से निकले, तो ये बात हमारी दुरुस्त नहीं है। हमें वक्त देना चाहिए। तो याद रख मेरे भाई, जब आप साबित कदम, हजरत खुबाब रज़ी अल्लाह ताला
बुखारी में जिक्र है, कुतुब हदीस में, कुतुब सीरत में जिक्र। हज़रत खुबाब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक़्त कलमा पढ़ा जब अभी 5 लोग कलमा पढ़ते, कुल बंदे अस्साबिकून अल-अव्वलून। आप फरमाते जिस औरत का मैं गुलाम था ना, उम्मे अनमार उसका नाम था, वो मुझे बड़ी सख्त सजाएं देती थी। आप लोहार का काम करते थे, सुलाखें, आपको पता है लोहार सुलाख रखता है पहले आग में, भट्टी में, फिर वो जब पूरी तरह तपती है फिर कुछ बनता है, लोहार का काम करते। आप फरमाते उम्मे अनमार मेरे साथ ये करती कि मुझे सख्त अजियत देती, कलमा छोड़ने पर मजबूर करती। एक दफ़ा तो ऐसे हुआ कि उसने काफिरों की ड्यूटी लगाई, मैं गली से गुजर रहा था, मुझे नहीं पता था उनकी पहले से तैयारी है, उन्होंने कोयले जला के रखे हुए थे। मुझे पकड़ा, मेरा कुर्ता ज़बरदस्ती उतारा, कोयलों पे लिटा दिया और मेरे वजूद पर वज़नी पत्थर रख दिए। फरमाते हैं मेरी चर्बी पिघली तो कोयले बुझे। ये शहादत का है उल्फत में कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी। ये इश्क है, कोई दिल लगी नहीं, इसमें बड़ी बर्दाश्त करनी पड़ती है। आप फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ना खाना काबा की दीवार के साथ टेक लगाए बैठे थे। मैं एक दिन हाजिर, मुझे बड़ी तकलीफ देते थे। कहते जब मैं काम कर रहा होता था तो मेरी मालकन आती तो निकाल के ना सुलाख तो मेरे सर पे रख देती। मेरा सारा वजूद जख्मी था। हुजूर खाना काबा की दीवार से टेक लगाए बैठे थे, मैं हाजिर हुआ तो महबूब करीम भी उठे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम से मैंने अर्ज की, हुजूर देखे मुझे कितनी तकलीफ दी जाती। तो अभी फरमाने लगे बस इतनी, बस इतनी। फरमाया तुमसे पहले लोगों के सरों पर आरे रख के 2 हिस्सों में चीर दिया जाता था, लोहे की कंगियों से उनके वजूद उधेड़ दिए जाते थे, पर वो सी नहीं करते थे, उफ नहीं करते थे। मैं खबरदार बस इतनी। फिर मेरे हुजूर ने हाथ उठाए, कहा ऐ अल्लाह खुबाब की मदद फरमा। अल्लाह खुबाब की इतने लफ्ज अदा किए। हज़रत खुबाब कहते हैं फिर मैंने वक्त को वक्त दिया, फिर मैंने हालात को वक्त दिया, फिर मैंने अपने महबूब की दुआ को कबूल होते देखा। फरमाते वो मेरी मालकन जो मुझे तकलीफ देती थी, अजियत देती थी, फिर उसका हाल ये था कि उसके सर में दर्द उठा, और जिस तरह कुत्ता चीखता है जब उसे मारा जाता है तो वो चिल्लाता है, इस तरह वो आवाज़ें निकालती। फिर वो बहुत बड़े तबीब के पास गई तो उसे किसी ने कहा कि लोहे की सुलाखों से अपने सर को दगवाया कर, ताक दिया कर, उसे चलाया कर जगह जगह से, ताकि तेरे अंदर का दर्द खत्म हो। तो आप फरमाते हैं फिर लोगों मैंने सब्र और इस्तिकामत का रिजल्ट देखा कि वो जो मुझे बतौर सज़ा मेरे सर पे सुलाखें रखती थी, फिर वो बतौर दवाई मंगाने लगी। मैं सुलाख गर्म करके लाता, उसके सर पे रखता। फरमाते हैं फिर उसे सुकून होता, फिर वो तड़पती। और चूँकि मुझे तो वक्त याद था ना, कहते हैं लेकिन मैं मुस्तफ़ा करीम का कलमा पढ़ता था, मैंने कभी दोबारा पलट कर उसे ये बात याद न करें। आप वक्त दें, माहौल को टाइम दें। आप देखें, हाँ ये ज़रूर देखें कि आपके ज़मीर के अंदर कोई ऐसी बात तो नहीं, कोई ऐसा मामला तो नहीं कि जहाँ आप गलत हैं। और अगर ऐसा नहीं, फिर आप वक्त दें आने वाले असबाब को। हम ना बड़ी जल्दी है, हमें दुआ कराई है तो आज शाम तक मसला ठीक होना चाहिए, दुआई खाई है तो तभी ये शाम तक ठीक होनी चाहिए। अगर हम राह हक के मुसाफिर हैं तो शाम को हमें कुर्ब इलाही मिल चुका हो, हुजूर की बारगाह के हम हुजूरी हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। आप वक्त दें, सफ़र को जारी रखें, तसलसल के साथ सफ़र करें। सफ़र के लिए जितने असबाब की ज़रूरत है वो सारे इकट्ठे करें, मेहनत पूरी करें, जद्दोजहद पूरी करें, हिम्मत पूरी करें, लेकिन फिर नतीजा अपने रब करीम पे छोड़ दें, फिर रिज़ल्ट अपने अल्लाह। कई दफ़ा हमारी चाहत और होती है और अल्लाह की हिकमत और हो, तो अल्लाह की हिकमतों पर बहुत सारी चीज़ों को छोड़ें। दुआ करता हूँ अल्लाह के हुजूर अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा।